Greetings, everyone. I'm Deepika Thakur. Welcome to the Cybersecurity and Forensic Conference by Brilliance NU. As you might be aware, that Brilliance NU is an international open community for emerging technologies in blockchain, artificial intelligence, machine learning, deep learning, and computer vision, cybersecurity, and forensics. Brilliance NU has done live webinars, workshops, conferences, and summits related to articles, research papers, and magazines. We provide open membership to all in our community, and we have a spread of over 10 countries worldwide. You can find the details of our website and the YouTube channel in the description box. And the topic for the day is advancement in document crime. And to present this topic today, we have Khushbu Jha with us, who is the CEO of Forensic Investigations and Consultancy Services. So welcome to Brilliance NU, Khushbu. It's really great to have you here. Thank you so much, ma'am, to invite me here. It would be my honor to be present here and share my knowledge with all of you. Thank you so much. So to begin with, my first question for you would be that why did you specifically choose this field of work? Okay, that's a very interesting question. Because this field, when I was selecting the forensic science, that at that time it was a hidden field, and I was looking for some emerging field. I could see at that time that emerging field is of cyber or forensic era. So that's what I have selected this, and it was a very interested, as well as I have a good observation skill. So I found it interesting, and I found that I could do better in this field. So that's what I have selected this field. Oh, that's really very interesting to know, actually. So can you explain in detail what advancement in document in crime is actually? Sure. Actually, अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो उस ड्यूरेशन में फिंगरप्रिंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि मोस्ट ऑफ द केसेस फिंगरप्रिंट, अगर कोई भी क्राइम होता था तो पीपल आर लाइक फिंगरप्रिंट वहाँ से हमें लिफ्ट अप करना है एंड उसको कंपेयर करके एनालिसिस करना है. एंड देन इन 20th सेंचुरी DNA was the new technology or the new way of investigation. So in most of the crime scene, we go to the DNA analysis from the blood sample or the hair root sample, any body parts they are getting. So we are looking for the DNA analysis so that we can find out the culprit. And in 21st century, if we talk about, this is about the forensic accounting and cyber forensic era. एंड इस टाइम पे जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी फोरेंसिक से रिलेटेड. अगर हम बात करें, पहले क्राइम सीन का बहुत लंबा प्रोसेस होता था. लाइक हम क्राइम सीन पे गए, वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट किया, उसको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए उसको लैब तक लेकर के जाना, एंड उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करना, एग्जामिनेशन करना, एंड देन एविडेंस को इस तरह से हैंडल करना है बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट अल्टीमेटली इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो अभी क्या है कि हमारे पास ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नए स्कैनर्स आ गए हैं कि ऑन द स्पॉट हम क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट को सेव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, एंड डिफरेंट लाइट सोर्स का यूज करके. तो ये सारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये काफी हद तक क्राइम को सॉल्व कर दिया है, और इसमें हमारे एविडेंसेस को कंटेमिनेट होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं. तो ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है क्राइम को इजीली और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, एंड एविडेंस प्रिजर्व करने के लिए भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं. प्लस साइबर में हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम कोई भी डिलीटेड डेटा है उसको रिकवर कर सकते हैं. और कई बार गलती से डिलीट होता है, कई बार इंटेंशनली डिलीट कर दिया जाता है. तो इन एडवांटेजेस भी हैं उसके, और कई बार इंटेंशनली किया जाता है बिकॉज अगर किसी चीज़ का प्रोज है तो कॉन्स भी हैं. कॉन्स जो होते हैं वो फिर आप क्रिमिनल माइंडेड पीपल के लिए, एंटी सोशल लोगों के लिए, वो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं. सो जितनी ज़्यादा क्रिमिनल एडवांस हो रहे हैं, अल्टीमेटली हमें एडवांस होना पड़ता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल होती है हमारे क्राइम सीन में. It's really interesting to know, actually. I think it would be helpful if you could
share some interesting cases you have come across? Sure. I would love to share. Okay, I'll share some of the cases. Like one recently I have solved. अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, वहाँ पे क्या होता है ना, बैंकिंग सेक्टर में अगर घर का जैसे मदर का फैमिली मेंबर्स का कोई भी पर्सन जाके बैंक अकाउंट से बोलते हैं कि हमारी मदर का ही फिंगरप्रिंट है और आप दे दीजिए, अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली रूरल पीपल दे नो ईच अदर एंड वो इस तरीके की एक्टिविटीज में हेल्प कर देते हैं। तो क्या हुआ, एक केस आया मेरे पास, उसमें एक ओल्ड लेडी का केस था। वो जो लेडी थी, रूरल एरियाज का ही केस है, बैंक चेक फॉर्जरी का केस है। तो इसमें थंब प्रिंट था एंड उसके अकाउंट से 5.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए गए थे और उसको मैसेज वगैरह इतना नहीं समझ आता था। तो जब पासबुक रिन्यू करने के लिए बैंक में वो कभी गई तो उसको पता चला कि उसके अकाउंट से इतना अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया है। फिर उसने अपनी फैमिली मेंबर्स में सबको बताया और फिर उसको, बैंक को भी नहीं, बैंक के हिसाब से तो उन्होंने सही किया है कि भाई फिंगरप्रिंट है और उससे मैच कर रहा था, बिकॉज फॉर अ जनरल पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फिंगरप्रिंट्स। तो फिर इसको जो हमारे पास वो चेक आया एंड देन उस चेक पे जो फिंगरप्रिंट थे उसको हमने मैच किया। जो उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म था वो हमारे फॉर द कंपैरिजन, वो हमारा एडमिटेड सैंपल आया था एंड हमने फिर उस दोनों सैंपल्स को कंपेयर किया एंड वी फाउंड कि वो नेगेटिव था। वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, फिंगरप्रिंट उसका कम्प्लीटली डिफरेंट था, डिफरेंट पैटर्न था, एक का आर्क पैटर्न था एंड एक का लूप पैटर्न था, तो मैच नहीं कर रहा था। इस टाइप के बहुत सारे केसेस होते हैं जो। और इंटरेस्टिंग केस बताते हैं मैं आपको, यूपी के गांव का केस है। वहाँ पे थ्रेट लेटर्स का बहुत चलन, पहले बहुत था, अभी तो कम हो गया, स्टिल अभी भी है कुछ गाँव में। तो एक थ्रेट लेटर ना, एक किसी फादर और सन आए थे हमारे पास केस लेकर के कि ये थ्रेट लेटर हमें आया है और आप हमें फिंगरप्रिंट निकाल के बता दीजिए किसका है। पर इट्स नॉट दैट इजी कि आप फिंगरप्रिंट देख के बता दें किसका है। तो फिर हमने उसमें, अब ठीक है देखते हैं क्या है इसके अंदर, हमने उसको सर्च किया, हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स के पार्शियल प्रिंट्स मिले, नॉट कंप्लीट। बट हमने कहा ठीक है, विल गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन, बट इसके लिए हमें एक सस्पेक्ट लिस्ट आपको बताना होगा कि कौन आपके सस्पेक्ट है और उनका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा सो दैट वी कैन कंपेयर। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे अगर हम जा करके ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमें और भारी ना पड़ जाए ये चीज़ें, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। देन हमने उन्हें कहा कि गिव मी सम टाइम और हम आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके बताते हैं एंड देन वी फाउंड उसमें ना कुछ नहीं था, बट उसमें वो पेपर के ऊपर बेसिकली कुछ राशन जो लिखते हैं ना उसकी लिस्ट थी, लाइक दाल चावल आटा वटेवर, जो राशन की दुकान वाले जो लिखते हैं वो इम्प्रिंटेड था, लाइक इंटेंडेड था, नीचे वाले प्रिंट में पेजेस में वो छपा हुआ था, बिकॉज उसके ऊपर कागज लिखकर कुछ लिखा हुआ होगा उससे पहले। तो ऐसा हमने उन्हें बताया कि ये जरूर राशन की कोई शॉप है आपके आसपास, तो वहाँ का केस, वहाँ से ये लेटर लिखा गया है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ राशन की दुकान तो है और उनका कुछ उनसे लड़ाई भी हुआ था लास्ट मंथ कुछ। तो फिर उनको, मतलब उनको वहां से सस्पेक्ट बहुत ही क्लियर हो गया था कि किसने ये लेटर को लिखा है। और उसमें कुछ वर्ड्स जो थे वो उर्दू वर्ड्स, फ्राइडे को जैसे उर्दू में कुछ और बोलते हैं, तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए थे। तो ही वाज वो डिफरेंट रिलीजन भी था उनका, तो वो दोनों चीजें मैच कर रही थी। तो ये केस इस तरीके से हम केस बहुत हद तक ईजी कर दिया था और उनको सस्पेक्ट समझ आ गया था कौन है। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। अच्छा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की आप बात करें, मैं आपको एक दो और नई टेक्नोलॉजी जो आई है उनके बारे में बताती हूँ। जैसे आजकल आपने थर्मल पेपर्स के बारे में सुना होगा। थर्मल पेपर्स क्या होते हैं, बेसिकली इट इज़ अ केमिकली ट्रीटेड पेपर होते हैं। और ये जो हम लोग एटीएम से स्लिप निकलते हैं या फूड काउंटर से मिलते हैं या हम कहीं हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें स्लिप देते हैं, ये सारे जो स्लिप्स होते हैं ये बेसिकली थर्मल पेपर से बने होते हैं। और इसमें ये कुछ टाइम तक रखने के बाद इसका जो इंक है वो डिसअपियर हो जाता है। तो कई बार हमें क्राइम सीन पे अगर कोई डेड बॉडीज मिलती है तो उसको लोकेट करना कौन से एरिया का है, कहाँ का है, तो इस टाइप के पेपर्स अगर उनकी पॉकेट में होते हैं तो उससे भी हम उसका एरिया लोकेट कर सकते हैं, नैरो आउट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को कि अप्रॉक्स एरिया ये हो सकता है। तो कई बार ये जो चीज़ है ये डिलीट इन द सेंस कि ये उड़ जाता है, ये जो है आपका लेटेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक नई एकदम सबसे लेटेस्ट हमारा भी ये डेवलपमेंट हुआ है।
इसमें हम इसको पेपर बेसिकली वही के मदद से होता है, तो उसको तो आयरन यूज करके या फिर हेयर ड्रायर यूज करके इन सब से भी ट्राई कर सकते हैं, बट इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप केमिकल मेथड पर जाए तो आयोडीन ट्रीटमेंट होता है, तो आयोडीन के फ्यूम से हम इसको रिकवर कर लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है डेफिनेटली। और कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट में ना पेपर्स का बहुत रोल होता है। तो पेपर्स, कई बार प्रिंटेड पेपर है, किसी ने फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी कर लिया, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कलर्ड फोटोकॉपी है या एक्चुअल है या फिर स्कैन्ड वन है। तो हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बंडल ऑफ पेपर आते हैं या कोई भी पेपर आता है कि ये प्रिंटर से सीधा प्रिंट किया गया है या इसकी फोटोकॉपी की गई है या फिर इसको स्कैन करके फिर प्रिंट निकाला गया है, उसको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बहुत इजीली by using different light source। VSC वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर इज अ डिवाइस, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं इसको। जी इनफैक्ट ये बहुत इंफॉर्मेटिव था कि लोग चीज़ों का कैसे मिसयूज करते हैं, एंड यूजिंग आवर फोरेंसिक नॉलेज and we can actually differentiate things. Really interesting to know. yes we And can। yeah, and the next question I had, as you understand the given situation we have of COVID-19 at present, COVID-19 pandemic, so what is the role of document crime in this situation? So it would be great if you could tell COVID-19 us, please. sure, I would love to answer। अगर हम कोविड-19 इस सिचुएशन की बात करें, इस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट हैंडलिंग थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज लोगों का एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट के केसेस तो डेफिनेटली कम हुए हैं कंपेरेटिवली। एंड ओवरऑल क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो 50 to 60% क्राइम रेट अभी कम हुआ है, लेकिन साइबर क्राइम की अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो ये इस डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ गया। जैसे आंध्र प्रदेश में 14% साइबर क्राइम रेज हुआ है, महाराष्ट्र में जो है 25% साइबर क्राइम रेज हुआ है, मेट्रो सिटीज का रेट 25 to 30% रेज हुआ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें इसमें जो अभी, बिकॉज रीजन इज व्हाट कि इंटरनेट यूजेस बढ़ गया है। 60 करोड़ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, और जिसमें से 29 करोड़ तो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं, वो इंटरनेट यूज करते हैं। इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम उनका 100% डेटा बेस कंज्यूम हो जाता है आजकल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन इंटरनेट। और सबसे इस ड्यूरेशन में क्या है कि जो फीमेल्स है उनको सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया है अगर हम देखें ओवरऑल डेटा तो। बिकॉज अभी रिसेंट 54 केसेस साइबर सेल में अगर रिपोर्ट हुए हैं अप्रैल के मंथ में, सिर्फ इस ड्यूरेशन में, जबकि फेब में जो रिपोर्ट हुए थे 21 केसेस। ये सारे फीमेल का डेटा मैं बता रही हूँ जो कि एनसीडब्ल्यू ने रिलीज किया था इस डेटा को। 37 केसेस हमारे मार्च के मंथ में, और जो थर्ड लॉकडाउन हुआ हमारा 54 केसेस में रिपोर्ट किया गया है। तो और ये सारे फीमेल इन्फेक्टेड है इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर हम देखें वो करते कैसे हैं, फिशिंग का मेथड है। आपको जैसे मान लीजिए किसी को शॉपिंग बहुत पसंद है तो वो आपको इस टाइप के आपके ब्राउज को आपको चेक करेंगे कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपकी सोशल साइट्स पे जाकर के आप क्या चीज़ मोस्टली पोस्ट करते हैं। तो वो आपको ऐसा पॉपअप भेजेंगे, ऐसे लिंक भेजेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे, और अगर आप क्लिक करें दैट मीन्स आप उसको एक्सेस दे रहे हैं अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, अपने कॉन्टैक्ट को शेयर करने का। बट अननोन जनरली पर्सन को पता ही नहीं होता कि मैं अगर उसको क्लिक कर रही हूँ जिसका मतलब उसको एक्सेस दे रही हूँ अपने फ़ोन के सारे डेटा का। लोगों का अकाउंट डिटेल्स भी फ़ोन में कई बार सेव होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम है ये बहुत रेज किया है इस ड्यूरेशन में। और अभी वो सारे एंटी सोशल लोग जो हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो सारे बैठ करके बस यही वेट करते हैं कि कब कौन उनका शिकार हो जाए, कब कौन उसमें उस ट्रैप में आ जाए। तो वो ईमेल के मेथड से, मैसेजेस के मेथड से, फेसबुक पे, बहुत सारे डिफरेंट जगह। और जब यूज करते हैं तो बहुत जरूरी है इसके सिक्योरिटी फीचर्स को जाने। बिकॉज आप अगर कोई भी चीज यूज करें तो एटलीस्ट आपके पास उसकी कंप्लीट इन्फो कंप्लीट नहीं रख सकते हैं, तो जो बेसिक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है वो जरूर आप रखिए। आप कोई चीज़ अगर एक्सेस किसी को दे रहे हैं, अगर अपनी कोई किसी अननोन लोगों से बात मत करिए, सोशल साइट्स पे इमेजेस मत शेयर करिए, वीडियोस मत शेयर करिए। आप उसी को करिए जिसपे आप उसको आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आपके नोन है। और
अननोन लोग से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस सबका अल्टीमेट बाद में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में इस टाइप के केसेस होते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी बताइए। नहीं, ये तो एक्चुअली साइबर का काफी, ज्यादा है क्राइम के या कंपैरिजन ये में अभी काफी शॉकिंग फिगर्स है, और ये बहुत सैड है कि फीमेल स्पेशली टारगेट हो रही है इन साइबर क्राइम्स में। एंड आई टोटली एग्री, बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं अबाउट सोशल मीडिया साइट्स यूसेजेस, सब क्लिक कर करके एक्सप्लोर करते हैं बिना सोचे हुए समझे हुए सब। तो जी आई टोटली बिल्कुल। एग्री कि बेसिक नॉलेज आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें तो उसकी जरूर रखिए बेसिक नॉलेज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि as everyone is aware that we have different emerging technologies like blockchain, machine learning, artificial intelligence, and data analysis. So, what these emerging technologies have a role or an impact in this sector of document crime? To the does it has any impact? देखिए, इसकी अगर इसका इम्पैक्ट की बात करें, बिकॉज अभी इसका जो यूज है वो बहुत ही अभी कम है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। बिकॉज बायोमेट्रिक्स की अगर हम एआई की बात करें तो फिंगरप्रिंट कुछ ऑफिस में यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन है जो कि आपका यूज करते हैं। लेकिन जैसे गेट पैटर्न की हम बात करें, आइरिस स्कैन की हम बात करें, या डिफरेंट एआई लर्निंग मशीन लर्निंग की बात करें, ये भी कुछ जगहों पे यूज किया जा रहा है। उसका रीच अभी एकदम रूरल एरियाज या फिर हम बोले कि तो एकदम लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है, उतना एक्सेस यूज नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें अभी क्राइम रेट कम है, लेकिन इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली हेल्प मिलता है। अगर कॉर्पोरेट में कोई भी क्राइम होता है तो बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, हम एक क्लिक करते हैं और हमारे पास एक पर्सन का पूरा डिटेल आ जाता है। तो इसका हमें एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है इन्वेस्टिगेशन को नैरो आउट करने में, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी सारी अवेलेबल होती है, इजी होता है इसको सर्च आउट करना। तो हमें इसमें तो डेफिनेटली हेल्प मिल जाती है। बट इससे क्राइम रेट बहुत नहीं अभी रेज हुआ है इन जनरल अगर हम बात करें। कॉर्पोरेट यूज है इसका। अभी क्या है कि कुछ लूप होल्स भी इस इन सब में काफी सारे, उस पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है। अगर वो छोटे छोटे कुछ लूप होल्स जब वो कवर आउट हो जाएंगे, उसके बाद ये फुल फ्लेज आएगा, तब इस पे हो सकता है, इस पे भी क्राइम रेट बढ़ सकता है। Yeah, I agree. And like हमने loopholes डिस्कस कर लिए, तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की डॉक्यूमेंट क्राइम के फील्ड में? कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जिनसे हम बेनिफिट हो सकें? जी जी। टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली हमारे पास क्या, जैसे हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारा अवेलेबल होता है। और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो आपको यूजफुल तो डेफिनेटली है। जैसे मान लीजिए हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में सारा चीज़ अभी डिजिटल हो गया है। तो उससे हमें क्या होता है कि कोई भी डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना आसान है, किसी को सर्च आउट करना आसान है, किसी तक पहुंचना आसान है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांटेज तो है ही, नो डाउट। एंड जैसे कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है, वी हैव मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, तो व्हाट आर द चांसेस of job opportunities in this document crime field, not pan world but specific to India also? And given the COVID-19 situation, what would be the job opportunities? वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज ये इस फील्ड में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एंड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें। रीज़न इज बिकॉज हर एक सेक्टर में आपका ये लैपटॉप सिस्टम, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट यूज़ किया जाता है। दैट वे इन सब के बावजूद भी हमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सारी चीज़ें सिस्टम में रखते हैं फिर भी डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। अभी भी हम कैश विड्रॉ चेक से करते हैं या डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। अकाउंट ओपन करना है तो डिजिटल भी आपका सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग बैंक बैंक वाले सारा सिक्योर करेंगे, बट आपसे सारा इन्फॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में लेते हैं।
तो डॉक्यूमेंट का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट, आपका कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास ड्यू डिलिजेंस करके जो टर्म है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। वहाँ पे इसका एक अच्छा हमारा स्कोप होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए। लोन डिपार्टमेंट में जो लोन के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि उस लोन के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर या नहीं कर, से भी बहुत सारे केसेस आते हैं। वो जस्ट लोन लेने के लिए उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं। लोन लेने के बाद पता चलता है कि वो तो फाइनेंशियल फ्रॉड और बैंकिंग फ्रॉड की अगर हम बात करें तो आप आरबीआई का अगर हम डेटा देखें तो बहुत ही बड़ा इसका लास्ट 4 इयर्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो बहुत हेवी अमाउंट है। पीएनबी बैंक का बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड है, और आपका एसबीआई बैंक, ये सारे बैंक का लोन डिफॉल्टर्स बहुत सारे हैं, करोड़ में इनका डेटा है, 74,000 करोड़ में है, जो आरबीआई ने लास्ट रिलीज किया है गाइडलाइंस के अंदर। तो हमारे पास इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बहुत वर्क है। फोरेंसिक एक्सपर्ट का डॉक्यूमेंट क्राइम का स्कोप भी है, एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, और अगर इंश्योरेंस के लिए क्या होता है कि अगर गाड़ी की कीमत उतनी नहीं बची हुई है तो लोग उसको इंटेंशनली जला देते हैं ताकि एटलीस्ट उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो टू फाइंड आउट कि आग लगा दी गई है या खुद से लग गई है या एक्सीडेंटल है, ये सारा फाइंड आउट करना कि उसका इग्निशन पॉइंट क्या था, कहाँ से फायर स्टार्ट हुआ, अंदर से बाहर से कैसे जला, उस पर कोई इग्निशन मटेरियल डाला गया, कैसे आग कैसे लगी। तो ये सारा चीज एक इंश्योरेंस सेक्टर में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कई बार अभी भी क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बावजूद उनके अकाउंट में पेंशन जाता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसे बहुत सारा डेटा जिस पे काम नहीं किया जाता है, तो वो सारा चीज इन्वेस्टिगेट करना कि अगर डेथ हो गई है तो पैसा क्यों जा रहा है, फिर किसकी वजह से जा रहा है, वो सारा चीज आपको बैंकिंग सेक्टर में इसका ह्यूज स्कोप है। इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया आपका यहाँ पे है। इसके अलावा एमएनसीज में अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर में फाइनेंशियल फ्रॉड, आपका कॉर्पोरेट में अगर क्राइम होता है हमारे पास, तो या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दूसरा अकाउंट फाइनेंस में सारा मनी रिलेटेड जितना भी आपका मॉनेटरी डीलिंग है वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो वहाँ पे होता है कि आप अगर कैश में हमें इतना अमाउंट दे दें तो इतना इतना शेयर कर लेंगे, लाइक 100 लाइक 1,000 रुपीज का अमाउंट है तो आप हमें 20,000 दे दें, और उसमें सिर्फ 1,000 मेंशन करें, बाकी हम शेयर करें, मतलब इस टाइप की चीजें होती हैं। तो उन सबको इन्वेस्टिगेट करना कि ऐसा कहाँ पे किस पॉइंट पे हो रहा है, फाइनेंस अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कहाँ हुआ है, प्लस माइनस कहाँ हुआ है। उसके अलावा इन सब का जो रिकॉर्ड है वो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो, बिकॉज अगर कोई भी फाइनेंस में कुछ भी गड़बड़ करता है, कोई भी क्राइम करता है, कोई भी पैसा इधर उधर या चोरी करता है या कम ज्यादा करता है, तो उसका डेटा तो उसके अकाउंट डिपार्टमेंट में मेंशन होता है। तो वो क्या करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले पर्सन को भी इन्वॉल्व करता है संभाव। तो वहां पे अब वो क्या करेगा, उसके पास तो शीट है, बिकॉज उसको डिजिटली भी हर चीज मेंटेन करनी है, तो वो एडिट करेगा फाइल में। और अगर कोई भी एक फाइल कंप्लीट हो गई है, उसमें अगर एडिटिंग की जाती है दोबारा रीओपन करके, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं, उसको पकड़ा जा सकता है कि कहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। और अगर अमाउंट कम है ज़्यादा है, ऑडिटिंग में भी ये काम होता है। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग का वहाँ बहुत, फोरेंसिक अकाउंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोरेंसिक, एज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट। ये हमारे आने वाले टाइम का एक बहुत ही जिसमें आपको ह्यूज सैलरी भी होगी और बहुत ज्यादा होने वाला है। बैंकिंग फ्रॉड में भी आपका फोरेंसिक अकाउंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इतना जो हम सारे लोग काम कर रहे हैं सब इंटरनेट यूज करके करते हैं, सिक्योरिटी उसमें कितनी है, कितने कितने सिक्योरिटी से हम काम कर रहे हैं, हमारा फोन कितना सिक्योर है, हमारा लैपटॉप कितना सिक्योर है, या सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा डेटाबेस है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सारे लोग सिक्योर नहीं नहीं हो पाएंगे बहुत जल्दी, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो इसका मतलब है कि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। जी।
थैंक यू खुशबू, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबके साथ। आई थिंक जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि इंस्पायर होंगे इस डिस्कशन से, एंड वो सो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक एरिया नहीं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, और ये सब एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपने मेंशन किया कि इसका पे आउट भी बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी upcoming and bright career in near future. And Thank you, ma'am. yeah, and with this, Thank you, Brilliance in You, for inviting me here. And I wish you all be safe, stay at home, and सभी एकदम सुरक्षित रहे घर में. yeah, Yes, ma'am. thank you, Khushbu, so much. And I want to thank all the audience for watching us patiently. And please do subscribe the YouTube channel of Brilliance in You. Stay home, stay safe, stay fit. Thank you, everyone.